السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. اس وقت شدید گرمی ہے اور گرمی کے اس موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے اسٹوڈیو میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں اشفاق اسحاق سبتی. اور آج کے دن کی مناسبت سے اصولاً تو آپ کو کہنا چاہیے تھا a very warm welcome in a sarcastic tone، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کہا. آپ نے کہہ دیا کافی ہے. جی بالکل، کیونکہ گرمی شدید ہے اور شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے. ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ پورا ریجن جس میں افغانستان بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، اس وقت اس شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے. اور پنڈی اسلام آباد میں بھی بہت ہی شدید گرمی ہے. بہت گرمی ہے. کل لاہور میں پارا کافی زیادہ ہائی تھا اور جو فیل لائک ٹیمپریچر تھا لاہور میں دیٹ واز 51 یعنی کہ 51 ڈگری. اور اس میں حالات کچھ ایسے تھے کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. لاہوری کافی پریشان ہے. انفیکٹ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی لوڈ شیڈنگ کی صورتحال اشفاق کچھ ایسی ہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ایک تو گرمی، اوپر سے لوڈ شیڈنگ، ہم جائیں تو کہاں جائیں. یعنی کہ اصولاً اگر دیکھا جائے تو نیپرا کی جانب سے یا جو بھی ادارے اس کے ذمہ دار ہیں وہ لاہور کو کراچی کی طرح کا بنانے میں کسی حد تک کامیاب رہے ہیں. تو ہیٹس آف ٹو یو سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز پنجاب حکومت نے بڑا اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہے، کرنے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب جو ویکسین نہیں کروائے گا اس کی موبائل فون کی سم بند کر دی جائے گی. اور موبائل فون کی سم جب بند ہو جائے گی نا تو آپ کے سارے کھڑاک ختم ہو جائیں گے. آپ پھر موبائل کو لے کے یوں بیٹھے رہیں گے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ سب سے بیسٹ طریقہ اشفاق، کیونکہ دیکھیں ہم بار بار یہاں پہ بیٹھ کے اپنے پلیٹ فارم سے، ہر پلیٹ فارم سے آپ کو کہتے رہے کہ جی ویکسین لگوانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جان بچانا ثواب بھی ہے. آپ نہیں لگوائیں گے تو پھر آپ کو فائن ہوگا، اور فائن جہاں نہیں کرے تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا. اور آج بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے. عوام کی بڑی توقعات وابستہ ہیں کہ اللہ کرے آج کا جو بجٹ پیش ہو وہ عوام فرینڈلی ہو. میں نے ڈھیلی جیبوں والے کپڑے سلوا لیے ہیں تاکہ زیادہ نوٹ آئیں تو اس میں رکھ سکوں. یہ بجٹ سے آپ کو کیا لگتا ہے آپ پہ پیسے نشاور کی؟ انداز غلط ہو سکتا ہے لیکن آئیڈیا ٹھیک ہے. ٹاپ سٹوریز. پنجاب میں شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ، عوام پریشان. شہروں میں 12 اور دیہات میں 18 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے. حکومت 8,400 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کرے گی. ٹیکس وصولی کا ہدف 5,800 ارب سے زائد ہے. 3,100 ارب روپے سود کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے. اس وقت پنجاب میں بہت زیادہ گرمی ہے. سورج وہاں پہ کافی زیادہ تپش کے ساتھ جو اپنی انٹری روز بروز بڑھاتا جا رہا ہے. اور اس تمام صورتحال میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے شہروں میں 12 جبکہ دیہات میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. عوام اس سے شدید پریشانی میں جو ہیں وہ مبتلا ہے، بڑی تکلیف میں جو ہیں وہ لوگ آ چکے ہیں. ہر ایک گھنٹے بعد شہروں میں 1 گھنٹے کے لیے بجلی جا رہی ہے اور دیہاتوں میں ہر 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے کے لیے بجلی جا رہی ہے. اور کہیں تو ہر 1 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے لیے بھی بجلی جا رہی ہے. اور اوپر سے گرمی کا تڑکا ایسا ہے کہ جو شہری ہیں وہ بلبلا اٹھے ہیں. اور گزشتہ دنوں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف قرارداد بھی پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے. اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت سسٹم میں موجود بجلی بھی صارفین تک نہیں پہنچا پا رہی. اچھا، اس سے متعلق ظاہر ہے کہ باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ابھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں خبر سامنے آئی تھی کہ 25 بچے سرکاری اسکول میں بے ہوش ہو گئے تھے شدید گرمی کے باعث. گرمی ہوتی ہے لیکن اس دفعہ ہم نے کہا کہ اس دفعہ اس کا جو اثر ہے کچھ زیادہ ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں گرمی کے باعث وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے صوبے بھر کے تمام اسکولوں کے لیے نئے اوقات کار بھی جاری کر دیے. بالکل جی، کیونکہ جیسے ابھی آپ نے اسلام آباد کا ذکر کیا، فیصل آباد میں بھی ایسی سچویشن تھی. اسی لیے جو نئے اوقات کار جو جاری کیے گئے ہیں اسکولز کے وہ ہوں گے صبح 7 بجے سے لے کے صبح 11 بجے تک. اور کوشش یہ ہوگی کہ 12 بجے سے پہلے جو ہیں وہ اسکولز وائنڈ اپ کر دیا جائے کیونکہ گرمی جو ہے وہ اشفاق بہت زیادہ. اور یو ریممبر یہی وہ ٹائم تھا جب آپ کی گرمیوں کی چھٹیاں بھی شروع ہوتی تھی، لیکن کووڈ کی وجہ سے آلریڈی ہم اتنا کچھ مس آؤٹ کر چکے ہیں کہ اب اسکول کھولنا بہت زیادہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر آپ کو سفر کرنا ہوگا. اچھا، ایک اور چیز جو ہم بات جس پہ کرنے جا رہے ہیں، اسد عمر صاحب نے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بجلی تو ہم نے زیادہ بنا لی لیکن جو اس کا ترسیلی نظام ہے ہمارے پاس اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنی جو بجلی ہے اس کو پہنچایا جا سکے صارفین تک. بالکل جی. اس وقت ذرا صورتحال کیا، کیونکہ لاہور کے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں. پنجاب سے شہروں میں بھی کچھ ایسی سچویشن ہے. ہمارے نمائندے مظہر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کیا سچویشن ہے. مظہر یہ بتائے گا کہ ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی صبح کے 9 بج رہے ہیں اور 9 بجے جو دھوپ ہے وہ آپ کے چہرے پہ بھی نظر آ رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے دن بھر ٹیمپریچر کیسا رہے گا اور یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے؟
جی دیکھیں آج تو کچھ موسم کی شدت کم ہوئی ہے. گزشتہ رات یہاں لاہور میں کچھ ہوا چلی ہے جس سے جو گرمی کی شدت کم ہوئی ہے. اس کے بعد کچھ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی کم ہوا ہے. 3-4 روز قبل جب ملک میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا تھا اور 8000 میگا واٹ تک جو مجموعی شارٹ فال ہے وہ پہنچ گیا, اس کے باعث دیہات چھوٹے شہروں میں بڑے شہروں میں 6 سے 8 اور چھوٹے شہروں اور دیہات میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی تھی. اور آج سے جو 8-10 سال پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی وہی سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ اچانک جو شروع ہوئی ہے جس سے لوگ بے حال ہوئے ہیں. لاہور کی یہ صورتحال کا اگر میں ذکر کروں تو 2-3 روز قبل یہاں اچانک جو گریڈ اسٹیشن ہے ان کو بند کرنا پڑا, جس کے باعث مختلف علاقوں میں کئی گھنٹے بجلی بند رہی. اگر گریڈ اسٹیشن کو فوری طور پر بند نہ کیا جاتا تو اس سے بہت زیادہ مالی بھی نقصان ہوتا, پھر اور بھی اس کو سسٹم کو جو ہے وہ کولیپس کرنے کا اندیشہ تھا. اس کی جو وجوہات بیان کی گئی ہیں جو ہمارے پاور سیکٹر کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تربیلا ڈیم ہے اس میں سلٹ آئی ہے جس کے باعث جو بجلی کی پیداوار ہے اس متعدد یونٹ اس سے بند ہوئے ہیں. 3000 میگا واٹ سے زائد سے بجلی جو ہے وہ سسٹم سے اچانک نکل گئی ہے. پھر اس کے بعد کچھ مہنگے تھرمل پاور جو جنریشن ہاؤسز ہیں ان کو بھی بند رکھا گیا تاکہ اگر بوقت ضرورت ان کو چلایا جائے گا. لیکن یہ ایک تو بجلی کی جو پیداوار کم ہوئی, دوسرا موسم کی شدت میں اچانک اضافہ ہوا. گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ پڑی لاہور سمیت پنجاب اور ملک بھر میں, جس سے جو طلب ہے وہ 24000 میگا واٹ تک چلی گئی. اور جبکہ بجلی کی جو رسد تھی پیداوار تھی وہ 16000 میگا واٹ تھی. تو اس سے 8000 میگا واٹ کا جو شارٹ فال ہے وہ لازمی بات ہے, لوڈ شیڈنگ اس کو کہہ لیں, لوڈ مینجمنٹ کہہ لیں, جیسے بھی اس کو پورا کرنا پڑا. تو بعض جگہ تو 18 گھنٹے بھی بجلی نہیں آئی کیونکہ سسٹم کو بچانے کے لیے گریڈ اسٹیشنز کو جو ہے وہ بند کرنا پڑا. تو اب جو تربیلا ڈیم ہے اس سے جو اس کے پیداواری یونٹ ہیں وہ انہوں نے کچھ پیداوار شروع کر دی ہے, تو اس سے کچھ بجلی کا بحران اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے گزشتہ روز سے. آج بھی صورتحال بہتر ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ سلٹ نکالنا تو مشکل ہوگا مظہر اقبال. وہ آبویسلی پانی کا انفلو ہوا ہوگا, اسی وجہ سے جنریشن بڑھی ہے. جی نہیں, اس میں پانی تو خیر پہلے کچھ روز سے اس کا جو ہے وہ آمد بھی زیادہ ہے, اخراج بھی زیادہ ہے, لیکن اس کا جو وہاں پہ پیداواری یونٹ ہیں ان میں کچھ فنی خرابی آ گئی تھی. تو اس کے باعث یہ جو ہے وہ بجلی کی پیداوار وہ انہوں نے دینا بند کر دی. بہت شکریہ مظہر اقبال, آپ نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا. اچھا جی, وہ تربیلا ڈیم کے حوالے سے وہ بتایا جا رہا تھا کہ وہاں سے 3000 میگا واٹ کی شارٹیج ہوئی تھی. اور جناب یہ سلٹ کے حوالے سے ہم اکثر بات کرتے ہیں, اپنے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ یہ جو ڈیمز ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ پانی جب وہاں سے آتا ہے انفلو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ریت اور مٹی بھی آتی ہے. اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی صفائی نہ کی جائے تو پھر جو آپ کا جو کانٹا لگا ہوا ہوتا ہے وہ تو بتاتا ہے کہ جس میں 1100 فٹ پانی ہے فار ایگزامپل, لیکن در حقیقت وہ ریت اور مٹی کی وجہ سے وہ پانی کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے اور وہ بتاتا 1100 فٹ ہے لیکن ہوتا 400 فٹ ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور جب یہ جو ڈیمز بنانے کی بھاشا ڈیم یا پھر کالا باغ ڈیم بنانے کی بات ہو رہی تھی تو اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ بھاشا ڈیم اگر بن جاتا ہے تو اس سے تربیلا ڈیم کی لائف میں بھی اضافہ ہوگا اور سلٹ کے مسائل بھی نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال یہ لیکن آج آپ نے اچھی بات کی, جو سلٹ کے مسائل آپ نے ایکسپلین کیے تو مجھے بھی جو میرا کانسیپٹ ہے وہ بھی اس حوالے سے کلیئر ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. آج آپ کو معلوم ہے آج ہے 11 جون اور جون کو آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار, یعنی کہ بجٹ. پوری عوام کی نظریں بجٹ پہ تھیں اینڈ پیپل ور ایکچولی ایکسپیکٹنگ کہ آج جو بجٹ پیش کیا جائے گا اللہ کرے وہ عوام دوست ہو. تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 8400 ارب روپے کا بجٹ جو ہے آج پیش کرنے جا رہی ہے. جی بالکل, بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اور جناب اس کے اندر ٹیکس وصولی کا جو ہدف ہے وہ 5800 ارب روپے سے بھی زائد ہے. دفاع کے لیے 1330 ارب روپے مختص ہوں گے. 3100 ارب روپے سود کی ادائیگی پر, یعنی کہ جو قرض لیے گئے ہیں ان کے اوپر جو سود ہے اس کی ادائیگی پر یہ پیسے خرچ ہوں گے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافے کی تجویز. آئندہ مالی سال جی ڈی پی کا ہدف 4.8% ہوگا. یاد رہی یہ ہدف ہے, حاصل ہونا نہ ہونا وہ ظاہر ہے کہ اس کی کئی ریزنز ہوتے ہیں. زرعی شعبے کی شرح نمو 3.5%. صنعتی شرح نمو کا ہدف 6.8% رکھا جائے گا.
और PSDP के लिए 2100 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, और जो सूबों का हिस्सा है वो 1202 अरब रुपए से जायद होगा। खाद पर सब्सिडी होगी, किसान कार्ड भी के थ्रू इस पे होगी, और किसानों को DAP खाद के लिए 2000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी भी मिलेगी। कोशिश की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर स्टेट भी है, एक कंट्री भी एग्रीकल्चर, तो उसमें कोशिश की जाएगी जो हमारा किसान है उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसको एम्पावर किया जाए। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है मदिया कि ये चीज ये है कि हमारे तमाम सेक्टर्स ने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ अच्छी रही, लेकिन जो गंदम और चीनी का बहरान आपको याद है वो हुआ था, तो जो गुज़िश्ता रोज इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई थी तो उसके अंदर बताया गया कि जनाब वो गंदम और चीनी बहरान की वजह से हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो ज्यादा रही, यानी कि पिछले साल थी वो 37 अरब डॉलर, इस साल वो 42 अरब डॉलर से जायद रही 10 माह के दौरान। बिल्कुल जी, और जो कॉटन की खैर इंडस्ट्री ने देखा कि कॉटन ने बड़ा सफर किया, कॉटन जिन्स की तरह। खैर आपको बताते चलें कि वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान पर ओवरसीज का मुकम्मल एतमाद है, जिसका वाज़ेह सबूत तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा है। 26 बिलियन डॉलर से हमारे तरसीलात ज़र जो हैं वो तजावुज़ कर चुके हैं, और वजीर खजाना मजीद कहते हैं कि तरसीलात ज़र हमारे लिए फरिश्ता हैं और इनकी बदौलत करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में चल रहा है। जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना मेरे नन्हे से फरिश्ते, तो ये जितना आते जाएंगे तो फरिश्ते का साइज बढ़ता जाएगा, तो बड़ी तवक्कुआत हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से। शौकत तरीन साहब मजीद क्या कहते हैं, आप जरा सुनिए। बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई। ओवरसीज पाकिस्तानी एक स्पेशल रिलेशनशिप है इमरान खान साहब। रेमिटेंसेस को तो अल्लाह ताला ने एक किस्म से हमारे लिए फरिश्ता बना के भेज दी। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, जो 7 बिलियन पे चले गए थे, 16 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं। दूसरी जानिब जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका पाकिस्तान की मईशत पर कितना एतमाद है, ये जानते हैं लंदन से हमारे नुमाइंदे फरीद कुरैशी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तरसीलात ज़र 26 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई हैं, और इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी है। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि तरसीलात ज़र में इस इजाफे की वजूहात क्या है। दरअसल बात यह है जी कि एक अरसे के बाद एक ऐसी हुकूमत आई है जिस पे अवाम एतमाद करना शुरू किया है। पहले हम जब पैसा भेजते थे तो हमें ये होता था कि कहीं चोरों के हाथ ना लग जाए। अब कम से कम हमें ये सुकून है कि ये पैसा हमारे ही मुल्क में जाएगा। एतमाद की वजह जी एक ही नाम है, इमरान खान। इमरान खान आपका पहला प्राइम मिनिस्टर है कायद आज़म के बाद जो आपके मुल्क में ईमानदार शख्स आया है, और 100 बातें लोग करते हैं लेकिन ईमानदारी के ऊपर इसकी अपोजिशन भी इसकी तारीफ़ करती है। तो हमें पता है हमारा पैसा जो पाकिस्तान जा रहा है हम बिल्कुल सही जगह पे भेज रहे हैं, और इसी तरह हम सपोर्ट करते रहेंगे। जी, इमरान खान की गवर्नमेंट को लोगों को अब ज़्यादा एहतमाद आ गया है, इसीलिए वो पाकिस्तान ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं। पहले की निस्बत पहले सारा पैसा ये देखो ना UK के अंदर इन्होंने क्या प्लाजे खड़े कर दिए। अब इमरान के दौर के अंदर लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उसने कोई ज़्यादा बहर तो नहीं ना बनाई। इमरान खान की जो हुकूमत है ये बहुत ही जो उन्होंने इक़दामात किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, और इसी की वजह से शायद पाकिस्तान के अंदर जो बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो अपने रेमिटेंसेस वगैरह भेजते हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट की जो है अवाम दोस्त पॉलिसी है, इसकी वजह से जो ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्होंने मैक्सिमम है पाकिस्तान में पैसे भेजे हैं, और उन्होंने अपने पाकिस्तान में बिजनेस किए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम किया है। इस साल जो रिकॉर्ड लोगों ने अपनी रेमिटेंसेस भेजी हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी इसका ख्याल करना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी उनको पूरा हक दें और उनकी मुश्किलात को दूर करें। देखिए जो ओवरसीज़ हैं दुनिया में जहाँ भी कोई बसने वाला है, ये अपने मुल्क के लिए माशी मामलात में ये रीढ़ की हड्डी होती है। जो लोग अपने मुल्क में पाकिस्तान भेजेगा, पैसे भेजेगा, वो ज़ाया नहीं जाएंगे, मुल्क की मईशत के लिए खर्च होगी, मुल्क की तरक्की के लिए खर्च होंगे। आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बातें सुनी। इनका कहना है कि तरसीलात ज़र में इजाफे की एक बड़ी वजह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इमरान खान की हुकूमत पर एतमाद है। जनाब एतमाद बिल्कुल मौजूद है, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शहजाद साहब, एंड वेरी गुड वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये बताइएगा कि जनाब ये तरसीलात ज़र आम आदमी को समझाइए कि कितना इम्पॉर्टेंट है इसका आना, और ये इसकी अगर मकदार और इसकी तादाद बढ़ती रहे तो मईशत पर इसके क्या असरात होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें रेमिटेंसेस का बढ़ना किसी भी मुल्क के लिए जो है वो एक अच्छा जो है वो ये कह लें कि अरेंजमेंट ऑफ डॉलर्स होता है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स होता है, और ये हम जैसे मुल्कों के लिए जिनके जो एक्सटर्नल अकाउंट्स हैं यानी दुनिया के साथ जो लेन देन होती है उसमें हम ज़्यादातर जो है आउटफ्लोज हमारे ज़्यादा होते हैं, हमारे डॉलर जाते ज़्यादा हैं, तो उसका एक नेमुल बदल ये होता है कि रेमिटेंसेस में इजाफा किया जाए, एक्सपैट्रिएट्स को जो है वो अट्रैक्ट किया जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको भी दी जाए जो लोकल जो है वो लोकल्स को हासिल होती हैं, और उसी हिसाब से उनको जो है वो अट्रैक्ट किया जाए कि वो अपने जो भी कमाई है वो वापस अपने मुल्क में
भेजें अपने न सिर्फ जो है रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बल्कि मुल्क के लिए भी वो एक तरह से बैकबोन होते हैं। तो अभी जो हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, इसमें नेचुरली एक तो ये बात है कि हमारे यहाँ रेमिटेंसेस इजाफा हुआ है, उसमें रोशन डिजिटल अकाउंट का एक बड़ा रोल है और वो एडिशनल $1 बिलियन आए हैं। लेकिन एक चीज इसमें देखने की है कि कोविड का भी एक रोल इसमें है। कोविड अगर ना होता तो शायद रेमिटेंसेस में इतना मैसिव इजाफा नहीं होता जो अभी हुआ है। तकरीबन कोई अभी $5 से $6 बिलियन जो है वो एडिशनल आए इस साल। इसमें एक बड़ी वजह यह है कि ये कहा जा रहा है कि जो हवाला हुंडी है वो बेसिकली कोविड की वजह से, बॉर्डर्स बंद होने की वजह से एयरलाइंस पे लिमिटेड थी और बहुत सारी चीजें ऐसी थी की वजह से क्रॉस बॉर्डर जो है वो और हवाला उल्टे के अलावा पर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि बाहर अब्रॉड काम भी कर रहे थे वो भी मुल्क वापस आए हैं कोविड की सिचुएशन की वजह से। अच्छा, जैसे शौकत तरीन साहब ने कहा कि जो तरसीलात ज़र होते हैं मुल्क की मईशत के लिए फरिश्ता साबित होते हैं, तो जो आम आवाम में देख रही है तो वो कहते हैं कि ये तरसीलात ज़र हमारे लिए फरिश्ता कब साबित होंगे, हम कब इसके असरात देखेंगे निचले तबके के लिए, इकॉनमी के लिए। मैं आपको चीज बताता हूँ कि जब भी आपके यहाँ एडिशनल लिक्विडिटी आती है, एडिशनल फ्लोज आते हैं, चाहे वो रेमिटेंसेस की फॉर्म में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में हो, चाहे वो लेट से डेट की भी फॉर्म में आते हैं, लेकिन डेट उसको सबसे कम नीचे रखे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन रेमिटेंसेस, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, ये तीनों की वजह से जो इनफ्लोज इकोनॉमी में आते हैं वो इकोनॉमी की कंजम्पशन का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके मेरे घर में कोई बाहर, हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारा बहन भाई कोई बाहर काम कर रहा है और हमें फ्लोज भेजता है, तो हम क्या करते हैं उसका, हम उसको कंज्यूम करते हैं, उसे खर्च करते हैं। जब खर्च करते हैं ना तो इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ती है। तो ये जो आपके यहाँ कंजम्पशन, अभी कल पाकिस्तान सर्वे आया है, इसके अंदर आप ये देखें जो कंजम्पशन है, यानी कि जो खर्च करने की स्टार्ट या खर्च किया जाता है जो, वो बेसिकली तकरीबन लास्ट ईयर के मुकाबले में 3 टाइम्स ज्यादा हो गई है। यानी कि अगर लास्ट ईयर 4% की कंजम्पशन तो इस पर 13% ग्रोथ है उसमें। अच्छा खुर्रम साहब, ये भी है कि रेमिटेंसेस का एक फ्लो आ रहा है, वो भी खर्च हो रहा है इकोनॉमी में, जो कि उसको एग्जैक्टली, दैट इज गुड। अच्छा, एक चीज़ ये ज़रा समझाइएगा कि जाहिर है कि हम बात कर रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हमारी जो है हमारे लिए फ़वाइद भी हासिल होंगे, उससे भी हमारे पास जो है वो ज़र मुबादला आएगा। लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, लेकिन इंपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है। $37 अरब गुज़िश्ता साल थी, इस दफ़ा बताया गया है कि $42 अरब 10 माह में रही। तो ये जो गैप है उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसानात होते हैं, तो इसको इंपोर्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट है और ये मैं ये कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट सरप्लस को। एक्चुअली हमें ट्रेड सरप्लस जो है अचीव करना है, जिसका मतलब ये है कि हमें इंपोर्ट्स की जगह एक्सपोर्ट्स को इतना बढ़ा देना है कि जितनी भी इंपोर्ट्स बढ़े, एक्सपोर्ट्स उससे ज्यादा हों, और इसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस। जिस दिन आप यकीन करें हमने ये अचीव कर लिया ना ट्रेड सरप्लस, वो सही खुशी का दिन होगा, क्योंकि चाइना ट्रेड सरप्लस जो है एंजॉय कर रहा है, तो देखें इसकी इकोनॉमी कहाँ चली गई है। यूरोपियन कंट्रीज देखें ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं, उनकी इकोनॉमी देखें कहाँ चली गई है। तो एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि दुनिया से आप मंगवा कम रहे हैं, लेकिन आप उनको दे ज्यादा रहे, भिजवा ज्यादा रहे। इसलिए तो कहते हैं कि एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी हमारी होनी चाहिए। हमारी लोकल मार्केट भी बहुत बड़ी है, इसको भी सर्व करना चाहिए, और हमारी एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट होनी चाहिए। तो ये जिस दिन हमने अचीव कर लिया, आज तो देखें जो करंट अकाउंट सरप्लस आप कहते हैं ना $1 बिलियन है या $800 मिलियन का हमने अचीव किया है, बहुत अच्छे बार अचीव किया है, वो बेसिकली किसकी वजह से किया है? वो रेमिटेंसेस की वजह से किया है। और आगे आने वाले साल में ये खतरा है कि रेमिटेंसेस अगर कोविड सबसाइड हो गया तो रेमिटेंसेस स्लो डाउन हो जाएंगी, और आपके यहाँ इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट हो रही है और मशीनरी और कैपिटल गुड्स की इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं। अभी हम उन चीजों पे खर्च नहीं कर रहे इम्पोर्ट करके जितना पहले कर रहे थे, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन आपकी वैसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज जो इंशाल्लाह बजट पेश होने जा रहा है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द बजट? देखें एक्सपेक्टेशंस तो बहुत अच्छी हैं। कल भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है, अल्लाह करे बिल्कुल ही ऐसा हो, क्योंकि ऐसा हुआ है फिर पास में भी कि आपके जब बजट आता है, वो कहते हैं ना डेविल लाइज इन द डिटेल, उसके बाद पता चलता है कि यहाँ भी टैक्स लग गया, यहाँ भी लग गया, कहाँ कुछ जा रहा था हुआ कुछ। लेकिन इस मरतबा क्लियर कट लग रहा है। जैसे कल उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम एक ओवर बर्डन नहीं करेंगे जो सैलरी क्लास ऑलरेडी है, जिसको ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ, ये बहुत अच्छी चीज है। हम बेस बढ़ाएंगे, नेट बनाएंगे, हम बात की बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन होपफुली इस मरतबा हो जाए। दूसरी और जीडीपी के जो ग्रोथ का टैक्सेस को दिया गया है, सिंप्लीफाई करेंगे। जीडीपी ग्रोथ के जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं कि 4.8 या समथिंग होगा, आपको लगता है कि ये अचीवेबल है? बिल्कुल अचीवेबल है। तो हमारी देखें, मैं आपको बताऊं, हमें ना 20 लाख जो है नौकरियां आती हैं हर साल चाहिए। इनफैक्ट हमारे जो पास आउट होते हैं जवान, वो 16 से 20 लाख के करीब होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ग्रोथ कम से कम 7 से 8% चाहिए इन 20 लाख को एब्जॉर्ब करने के लिए।
तो ये स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। नारा बिल्कुल सही है ग्रोथ का, लेकिन साथ साथ स्ट्रैटेजी इसको अचीव कैसे करना है वो मेरे ख्याल में उस पर काम किया जाए। होपफुली आज बजट उस हिसाब से हो तो इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे हमारा पोटेंशियल। इंशाल्लाह ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे और खुद बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया कि वी नीड टू बी एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री। ऑब्वियसली देखें वही बात है, हम उन्होंने import कहा बढ़ा रहे ट्रेड हैं, सरप्लस हाँ, होना चाहिए। हाँ। ट्रेड सरप्लस नहीं होगा तो मामला बेहतर नहीं होंगे। और जो कर्ज की अदायगी होती है पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्ज हैं वो उसी वक्त मुमकिन है कि पाकिस्तान या तो अर्न करे यानी कि अपने एक्सपोर्ट्स के जरिए पैसा प्रोडक्शन कमाए, बढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है वो कर्जे अदा करे या फिर रेमिटेंसेज आए। जो मुल्की कर्जा है वो तो आप नोट छाप कर भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन असल मामला है फॉरेन जो वो एक इशू है, डेब्ट है। तो जनाब इसी पर मजीद भी बात करेंगे। विल टेक अ ब्रेक हियर। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज बजट आ रहा है और ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं। ऑटो इंडस्ट्री के लिए खुसूसी पैकेज है जिससे ना सिर्फ गाड़ियों की कीमत में भी कमी आएगी बल्कि इससे रोजगार के मौके भी फराहम होंगे और ऑटो पार्ट्स की ड्यूटी पर भी अहम फैसले लिए जाएंगे। पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स को भी रियायत दी जा रही है जिससे नए प्लांट्स मुल्क में लगेंगे। इस वक्त 17 नई कंपनियां ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में दिलचस्पी रखती हैं जिससे $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। नई ऑटो पॉलिसी के मुताबिक बेहतर फीचर्स की गाड़ियां कम कीमत पर फराहम करना है। बिल्कुल जी। और इस पॉलिसी का वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द ऐलान भी करेंगे। और मुआवनी खुसूसी शहबाज गिल के मुताबिक नई ऑटो पॉलिसी का मकसद गाड़ियों की कीमतों में कमी, मकामी सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और तीसरा गाड़ियों की एक्सपोर्ट में इजाफा करना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब खुर्रम शहजाद से बात कर रहे थे तो वो भी कह रहे थे कि प्रोडक्शन इतनी बढ़ानी चाहिए कि हम एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री बन सकें। और हुकूमत की साथ में कोशिश है कि उनकी जो ओन की कीमत है, जो स्पेशली जो ओन की जो ओन है, जो स्पेशली हमने देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है। कीमत कुछ और है, वो खामखा का है। यानी कि अगर आपने फौरन गाड़ी खरीदनी हो, आपको कल गाड़ी चाहिए मिल जाएगी, 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा। बिल्कुल डिपेंड्स ऑन द डिमांड के डिमांड क्या है उसकी। इमेजिन इशफाक 17 लाख की अगर आप गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं और इस वक्त अवेलेबल नहीं, तो जो आपको ओन की मद में कीमत देनी है वो 4 लाख। ऐसे ही है। मतलब सोचें आप आम लेने जाएं, वो कहेंगे अभी चाहिए तो इस पे 500 रुपए ज्यादा दो। सर्दियों में आम चाहिए, सर्दियों में चाहिए तो ठीक है इसी प्राइस पे ले लो। इसी प्राइस में सर्दियों में और महंगे होंगे। बहरहाल इसी हवाले से हम ऑटो सेक्टर के माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। ये जनाब मशहूद खान साहब हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मशहूद खान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा ये फरमाइएगा कि ये जो खुसूसी पैकेज लाया जा रहा है ऑटो सेक्टर के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अच्छी हैं? देखिए दो चीजें। पहले तो हम बजट को देख लेते हैं। इस वक्त जो बजट की सिचुएशन है उसमें जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारे पास जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है सेक्टर पे जो कि गाड़ी की सेल पे है, इसी तरह रॉ मटेरियल्स पे एडिशनल कस्टम। और इस वक्त मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इन दोनों चीजों को रिव्यू कर रही है और आज के बजट में ये अच्छी न्यूज नहीं थी ताकि एंड कंज्यूमर के पास ये चीजें आए ताकि प्राइसेस कम हो सके। सही। अच्छा ये बात तो बड़ी अच्छी, लेकिन मशहूद ये बताएगा कि क्या हमारे पास ये कैपेसिटी भी है कि हम लोकल सतह पे अच्छी म्यार की गाड़ियां जो हैं वो बनाएं? डेफिनेटली। देखिए इस वक्त आप ये कह सकती हैं कि जो वर्ल्ड रिनॉन्ड ओईएम्स है वो पाकिस्तान में आ चुके हैं। आप जैसा इंट्रोडक्शन में देखिए 17 ओईएम्स की आप जिक्र कर रही हैं, उसमें आप टोयोटा हो, होंडा हो, किया हो, सुजुकी हो या होंडाई हो, ये सारे बड़े नाम हैं, ये बड़े प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड्स पे हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। ये वो लोग हैं। लेकिन मशहूद ये चीज़ हम देखते रहे इन द पास्ट कि जो सारिफीन हैं उनकी शिकायत रही। मिसाल के तौर पर कुछ गाड़ियां ऐसी भी आ रही हैं जिसके अंदर एयर बैग्स यानी कि सेफ्टी फीचर्स में सबसे अहम जिसका किरदार होता है वो नाम को नहीं है। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें 2 उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके मिन्नतों तरलों के बाद उन्होंने 2 एयर बैग्स दे दिए, जबकि उसी स्टैंडर्ड की गाड़ियां, उसी तरह की, उसी डिज़ाइन की, मॉडल की गाड़ियां अगर बैरून मुल्क हैं तो उनमें 7-7, 8-8 जो हैं वो एयर बैग्स मौजूद होंगे। तो कहीं किसी हद तक हम इस सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं यहाँ पर? मेरे ख्याल से आप इसको रिव्यू करें। देखिए एक तो है पाकिस्तान एक अंडर डेवलप कंट्री, इसी तरीके से भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज करें। इस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो पॉलिसीज आ रही हैं उसमें अच्छा हमें सोचना नहीं चाहिए, लेकिन दरहकीकत वो आई होप कि दिस गेट्स बेटर। मीनवाइल हम आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जनाब बात बड़ी अच्छी है।
अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि ऑटो इंडस्ट्री को हमने जो खुसूसी Facilitate पैकेज करना देने है। और मदिया ये आपके भी इल्म में बात होगी कि जनाब लोग इंपोर्टेड गाड़ियों पे ज्यादा रिलाई करते हैं। आप सोचें कि इंपोर्टेड गाड़ियां वो जो Security वहां पर wise। चली हुई हैं उसके अंदर 50-50 60-60 हज़ार किलोमीटर गाड़ियां चली होती हैं, उसके मीटर्स भी रिवर्स होते हैं, रिफर्बिश्ड होती हैं, उसके बावजूद पाकिस्तानी उन पे ज्यादा भरोसा करते हैं जितनी भी क्योंकि- जापानीज कार हैं हाँ मार्केट जी, में। उनकी माइलेज अच्छी है। बहुत से लोगों के उसके ऊपर जो पाकिस्तानी गाड़ियां हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए जनाब एक तो ये है कि भरोसा नहीं है कि जी पाकिस्तान में असेंबल होती हैं, हालांकि पाकिस्तान में असेंबल की जाती हैं गाड़ियां। क्योंकि सेफ्टी मनी लेकिन- में से ली जाती है ना। Exactly। 17 लाख की आप गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे थे। 17 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं है। जी। उसकी भी जब आप गाड़ी लेने के लिए जा रहे होते तो उसमें एयर बैग मौजूद नहीं होता। जी। फिर अगर आपने एयर बैग वाली गाड़ी खरीदनी तो उसके लिए फिर आप सोच लें कि आपका जो बार है ना वो 2 मिलियन से ज्यादा अबव होना चाहिए। अब तो 2.5 उसमें मिलियन भी- से above होना चाहिए। उसमें भी हम अशफाक देखते हैं कि खुदा ना खासा जब कोई एक्सीडेंट होता है ये एयर बैग्स नहीं खुलते। नहीं खुलते। उसके बहुत से रीजन हैं। अच्छा, उसके कई रीजन जो हैं वो ये भी होते हैं कि बाज़ औक़ात ये जो कंपनीज होती हैं वो उसको रिलेट करती हैं जनाब आपकी सीट बेल्ट सीट के बेल्ट साथ से, कि हाँ। आपने सीट बेल्ट पहनी होगी तो ही जनाब आपका एयर बैग एक्टिवेट होगा। उसकी सिर्फ वजह ये यहाँ पर, होती हाँ। है कि अगर आपने ऐसा ना किया और आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई और आपका एयर बैग जो है वो डिप्लॉय हो गया तो आपकी गर्दन टूटने का अंदेशा होता है इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। तो बाज़ कंपनीज इसमें ये काम करती हैं, लेकिन होने चाहिए जनाब। आप देखें कि बैरून मुल्क आप जाएं तो आपके घुटने के लिए अलग जो है वो एयर बैग है, साइड कर्टन अलग आएगा, सामने का एयर बैग अलग है, मतलब सब 7-8 एग्जैक्टली एयर बैग्स होते हैं। पीछे बैठे ना उनके लिए भी एयर बैग्स और अलग है। लेकिन अगर अभी बात ऊपर ये जाएं है- तो 16 एयर बैग्स होते हैं, यहाँ पर 2 दे देते हैं तो बस। अभी अशफाक बात यह है कि हम किस तरीके से जो मोटर व्हीकल्स हैं इनकी प्राइसेस इतनी मुनासिब कर दें, क्योंकि वही लोग जो कि पाकिस्तान में जो हम कहते हैं छोटी से छोटी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, जब वो किसी बैरूनी मुल्क की छोटी सी नौकरी भी कर रहे हैं तो उसमें अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि Purchasing व्हीकल्स की परचेजिंग पावर भी है और वहाँ पे कीमत भी कम है। तो अल्लाह करे इस हवाले से काम किया जाए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू आवर शो। और कराची में एक अच्छी खबर यह है कि एक बैन सूबाई मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह, यानी कि वो गिरोह जो कि मोटरसाइकिलों को उठा लेता है, वो पुलिस के काबू में आ गया है। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नजीर शाह। कराची के शहरियों की 6 माह के दौरान हजारों मोटरसाइकिलें चोरी और सैकड़ों छीनी जा चुकी हैं। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के बाहर में इस वक्त मौजूद हूं और इन्होंने एक बैनुल सूबाई गिरोह पकड़ा है जो जदीद तरीके से मोटरसाइकिलें चोरी करने के बाद उनको बलूचिस्तान फरोख करता है। बाखबर सवेरा के जो नाजरीन है वो देखें कि किस तरीके से उनकी मोटरसाइकिलें उनकी आंखों के सामने से ले जाई जाती हैं और फरोख कर दी जाती हैं। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग का जो तमाम तर अमला है वो दाद का मुस्तहिक है कि वो किस तरीके से जो बाइक्स, आपकी बाइक्स एक तो आपके सामने से उनके जो ट्रेसेस नंबर जो चेंज होते हैं पता ही नहीं चलता, आप देखते रह जाते हैं और आपकी बाइक किसी और की होकर वहां से रवाना भी हो जाती है। फिर आगे जाके यही 125 जिसकी कीमत 140 है लाख रुपए में फरोख कर देते हैं। यानी कि आप ये कितना बड़ा सोचिए गिरोह है। कि एक इंसान के पास शनाख्त का तरीका क्या होता है, उसकी बायोमेट्रिक्स, यानी कि ये वैसे ही है कि आपके अंगूठे के निशान जो है वो तब्दील कर दिए जाएं और उसके बाद आपकी शनाख्त का पता ही नहीं, आपसे आपका नाम छीन लिया जाए। ये वैसा ही हो रहा है। और आप जरा देखिए कि किस तरह ये चेसी नंबर और उसके बाद इंजन नंबर जो है वहां से हटा दिए जाएं तो गाड़ी के अंदर और शनाख्त क्या रह जाती है। पर आप देखिए वो कितने, ये जो जिस लड़के से वो बात भी करवा रहे थे, जो मुजरिम पकड़े गए हैं, उनकी आवाज से मालूम हो रहा था कि उनकी उम्रें कितनी कम है। जी। तो आप ये देख लें कि ये जो गिरोह कितना स्ट्रांग है कि छोटे से छोटे लड़कों को भी ट्रेन कर रहा है। और ये कोई 2-3 लड़के तो नहीं होंगे। ऑफ कोर्स कराची में जितनी बाइक्स उठाई जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये गिरोह काफी बड़ा और होगा। उसको जनाब आपने उसकी शनाख्त चेंज कर दी तो उसके बाद किसी को कैसे पता चलेगा कि जनाब ये नई बाइक है, कौन सी है, उसका इंजन नंबर, चेसी नंबर आपने चेंज कर दिया, फिर उसको जाके आपने रजिस्टर्ड भी करवा दिया। और आप सोचें कि 1 लाख रुपए में, यानी कि मुफ्त की बाइक जो आपने चोरी की हुई है उसको जरा सी ऑल्टरेशन के बाद आप 1 लाख रुपए में फरोख्त कर दें, जो लेने वाला है वो भी खुश। और ये कराची में नहीं बिकती, खुजदार में जाके पुलिस का इनको बहुत फरोख्त अच्छा देता है। कारनामा है कि जनाब आपने ऐसे ग्रोह को पकड़ा। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और जरा टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं। आजकल के दौर में कौन ऐसा शख्स है जिसके हाथ में कोई ना कोई गैजेट नहीं देखते, या तो फोन होगा या तो लैपटॉप के सामने हम भी बैठे हुए हैं। और माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान के IT के शोबे में पिछली 1 दहाई में अगर देखा जाए तो इन गैजेट्स की तादाद में भी और गैजेट्स के इस्तेमाल में भी और मुख्तलिफ किस्म के गैजेट्स में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया। और पाकिस्तान सॉफ्ट एक्सपोर्ट बोर्ड की परफॉर्मेंस जो है रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019-20 की पहले 6 माही के मुकाबले में माली साल 2020-21 के पहले 6 महीनों में IT बरामदात में 40% इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है और हुकूमत की जानिब से आज़म किया गया है कि ये इजाफा जो है 40 से 100% पर जाए। इसी पर बात करने के लिए साथ मौजूद हैं नदीम इलाही साहब, जो एक्सपर्ट हैं IT इंडस्ट्री के। अस्सलाम वालेकुम नदीम इलाही साहब।
सर ये फरमाइएगा कि वैसे अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं इनमें? देखिए, आईटी जैसे आपने खुद कहा एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारे एरियाज़ हैं। तो दो मेन एरियाज़ जो हैं जो एक्सपोर्ट के हवाले से गिने जाते हैं, एक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की, सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन पे सॉफ्टवेयर है, ERP सॉफ्टवेयर है। तो वो सारी जो डेवलपमेंट होती है वो हम पाकिस्तान से करते हैं और हम ये बाहर क्लाइंट्स को देते हैं। तो ये तो एक सॉफ्टवेयर का शोबा हो गया। दूसरा शोबा जो बहुत बड़ा है वो है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। आईटी के साथ जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज हैं, उसके अंदर कॉल सेंटर्स हैं, उसके अंदर बैक ऑफिस सर्विसेज हैं और ये सब। सो ये बेसिकली दो मेजर सेक्टर्स हैं, एक आपका सॉफ्टवेयर है और आपका एक आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है। सही। अच्छा नदीम साहब ये बताइएगा, हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के जो आईटी के एक्सपर्ट हैं वो समहाउ, क्योंकि ब्रेन ड्रेन इतना देखने में आता है कि वो पाकिस्तान से तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद वो जाके बाहर जाके सर्व करते हैं। कब हमारी पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री इतना फ्लरिश कर लेगी कि बाहर जो लोग जिन्होंने तालीम हासिल की वो वापस वतन आएंगे और उनको पता होगा कि उनके लिए इतना पोटेंशियल यहाँ पर है, इतनी स्पेस है कि वो कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बात आपकी ठीक है। एक्चुअली इशू ये है कि आईटी इंडस्ट्री में इस वक्त एक बूम है अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और आईटी के शोबे में काम करने वाले लोगों की बहुत डिमांड है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में बहुत डिमांड है। तो इस वजह से एक चैलेंज तो है उस लिहाज से। इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा इशू रहा है वो यही जो बाकी इंडस्ट्रीज के साथ रहा है, चूँकि ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है और ये टेक्सटाइल की तरह कोई फिजिकल गुड नहीं है। इसके लिए जो आपके क्लाइंट्स हैं वो बाहर हैं, प्राइमरीली अमेरिका में, वो पाकिस्तान उनको आना पड़ता है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, वो सारा एक प्रोसेस होता है। तो ये जो हमारे हालात रहे हैं पिछले 8-10 साल में, इस वजह से आईटी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ है। बहरहाल वो वक्त अब गुजर गया और पिछले, जैसे आपने खुद कहा, पिछले 5 साल से इस इंडस्ट्री में बहुत बूम हुआ है और खुसूसन लास्ट 2 इयर्स तो बहुत ही अच्छे गुजरे हैं हमारे, और इंशाल्लाह अगले 5 साल दैट इज ड्यू टू कोविड-19। कोरोना वायरस की वजह से भी बहुत जाहिर है कि इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आईटी इंडस्ट्री को काफी फरोग मिला इससे। जी जी, वो तो आप देख रहे हैं, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं इस वक्त इस पे स्काइप पे, तो एक बहुत पुश हुई है डिजिटाइजेशन पे। अच्छा, इस वक्त इसमें हुकूमत ने भी हमारी बड़ी हेल्प की है। इस इंडस्ट्री को उन्होंने एसेंशियल सर्विसेज में रखा है, फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। तो टैक्सेशन कम है। जी जी, टैक्सेशन का तो एक अलग इशू है, बट हमें अलाउ किया गया है कि हम अपना काम चलाते रहें। जैसे लॉकडाउन हुए, इसके अंदर से इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिली है। हालांकि दूसरी दुनिया में बाकी जो मुल्क हैं जिनसे हम कम्पीट करते हैं, वहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से बहुत सारा काम हमारे पास आया है। अच्छा नदीम साहब, एक और चीज़ समझाइएगा कि अभी जो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं दैट इज़ क्लोज टू 1 बिलियन, यानी कि 917 या इस तरह का मिलियन का कोई फिगर है। अब वो चाह रहे हैं कि 2023 तक ये फिगर चला जाए 5 बिलियन तक, और 2030 तक अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो चाह रहे हैं कि 10 बिलियन डॉलर्स तक चला जाए। आप समझते हैं कि ये अचीवेबल है? जी बिल्कुल अचीवेबल है। इनफैक्ट मैं आपको करेक्ट कर दूं, इस वक्त जो अगला माली साल है, यानी कि फिस्कल ईयर जो अभी शुरू होने वाला है, इसमें एक्सपेक्टेशन है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन को हिट कर जाएगी या 2 बिलियन से क्रॉस कर जाएगी एक्सपोर्ट आपकी। तो आई थिंक पोटेंशियल बहुत है और ये नंबर्स अचीव हो सकते हैं। इसमें कुछ इश्यूज हैं, टैक्सेशन के हवाले से कुछ इश्यूज हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट के हवाले से इश्यूज हैं। अगर उनको हम एड्रेस कर लें टाइमली तो ये हो सकता है, बिल्कुल सही है। स्किल डेवलपमेंट के जो आपने बात की, इसको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी, आईटी एक्सपर्ट नदीम अल साथ मौजूद थे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए पूरी दुनिया जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो वो आईटी पे का जो दारोमदार है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हाँ, और बिलाशुबा उन्होंने सही कहा कि अब स्काइप के जरिए हम कनेक्ट करते हैं लोगों को, क्योंकि कोरोना वायरस के खतरात हैं। लोग घरों से वर्किंग फ्रॉम होम करते हुए अपने जो सॉफ्टवेयर हैं वो सेल कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात, अच्छी बात है। और गवर्नमेंट की जानिब से जो एसेंशियल सर्विस करार दिया गया तो इसके अंदर ये है कि वो इन दिनों में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। और आईटी इंडस्ट्री अगर हमारी बूम करेगी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो हमें उससे फायदा ही हासिल होगा। कनेक्टिविटी का भी मसला अगर हल हो जाए तो बल्ले भी बल्ले थे, शावा भी शावा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, एक और घंटा और आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे और क्या टॉप स्टोरीज हैं, क्या अहम इश्यूज हैं जो इस घंटे में हम डिस्कस करेंगे। वो ज़ाहिर है कि मदिया भी आपको बताएंगी, मैं भी आप तक चीज़ें पहुंचाऊंगा। लेकिन बजट आज की अहम तरीन खबर है। बजट पेश होगा, उसके अंदर बहुत सी तवक्कुआत हैं। और मदिया, एक चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बजट जब आता है तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि हुकूमत को खर्चे भी करने होते हैं, तरक्याती काम भी करने होते हैं,
और वो टैक्स कलेक्शन भी उसके अंदर होती है और इनकम टैक्स उसमें बड़ा किरदार अदा करता है और जो लोग टैक्स नहीं देंगे उनके लिए मसाइल भी हैं। जो लोग टैक्स नहीं देंगे उनके लिए मसाइल है क्योंकि अब होंगी गिरफ्तारियां। और साथ में वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने भी कहा था कि जो सैलरीड लोग हैं ना, मतलब जिनको सैलरी मिलती है, हम उन पे मजीद बोझ नहीं डालेंगे, एक्सपेंड करेंगे। हाँ, एक्सपेंड करेंगे, दायरा कार इसको वसी करेंगे। तो इसका मतलब ये एक्सपेक्ट अगर हम कर लें इशफाक के टैक्स मजीद नहीं लगेगा तो क्या ये सही होगा? नहीं, लेकिन बात यह है कि 4 वज़राए ख़जाना मुख्तलिफ बातें कर चुके हैं। हफीज़ शेख साहब से ये सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद हर किसी ने अपने मर्ज़ी की बात की। हमाद अज़हर साहब ने नहीं की क्योंकि उनको मौका नहीं मिला, मुख्तसर उनका दौरानिया था। लेकिन वैसे ऑब्वियसली टैक्स नेट बढ़ेगा तो ज़ाहिर है कि और ज़्यादा लोग, चंद लाख लोगों के बजाय ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्सेशन की तरफ आएंगे। और एफबीआर की हरासानी उन्होंने कहा ख़त्म कर दी है, यानी कि हरासमेंट जो पहले होती थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब डायरेक्ट जेल जाना होगा। मतलब कैसे एफबीआर कैसे हरास करता था वैसे? मतलब मैसेजेस वगैरह, कॉल अप नोटिसेस और इस तरह की चीजें होती हैं। हाँ, कि जी इस टाइम का बताएं, इस टाइम का टैक्स अदा नहीं किया, फलाने 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 मुल्क में आपने इस 1 महीने में टैक्स अदा नहीं किया। क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है? बिल्कुल। सबूत दें, निकालें पर्चा। मैं अभी वो मैंने करना है, मैंने नादरा की वेबसाइट पे करवाएं, वरना आपने कोई भरोसा नहीं आपने वैक्सीन कराई या नहीं कराई। मैंने तस्वीर लगा के पूरी दुनिया को बता दिया है। वो जाली टीका था, वो टीका ही नहीं था। टॉप स्टोरीज है। हुकूमत खत्म कर दी, नोटिस नहीं भिजवा सकेंगे लेकिन खुद जायजा लेकर टैक्स दें। थर्ड पार्टी से ऑडिट भी करवाएं, जो टैक्स नहीं देगा अब जेल जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। वैक्सीन लगवा ली, सबूत भी दें, शहरियों को सर्टिफिकेट से मुताल्लिक नई मुश्किल। नादरा की वेबसाइट पर शहरियों का डेटा अपडेट न हो सका, बैरून मुल्क जाने वाले शहरी परेशान। खरीदो फरोख्त के नित नए अंदाज, हर माल हर चीज अब मिलेगी $1 में। क्रॉकरी, स्टेशनरी, खिलौने, ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ गुजरांवाला में $1 शॉप की तरफ खरीदार मायल। तो सबसे पहले आपको अहम खबरें दें कि विफाकी बजट 2021-22 आज पेश किया जाएगा और बजट का मजमूई हजम जो है 8,000 अरब रुपए से जायद, जबकि खसारा 3,050 अरब रुपए होगा। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे लईक और रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी लईक, मजीद क्या तफसीलात हैं आज पेश होने वाले बजट के हवाले से? जी, बजट के हवाले से सबसे पहले तो जब कुछ देर कबल आप बात कर रहे थे तो टीके का बता दूं, इस बार टीके बड़े कम लग रहे हैं अवाम को और उसमें काफी कोशिश की गई है कि अवाम को खास तौर पर तनख्वाहदार तबके को कम से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। जो लोग गरीब हैं उनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटियां और मुख्तलिफ मदों में सरचार्जेस होते थे उसमें भी कमी की इतलात आ रही हैं। बजट जैसा कि आपने बताया 8,000 अरब से जायद होगा और खसारा 3,050 अरब रुपए है। तो टैक्स आमदन का हदफ काफी अग्रेसिव बढ़ाया गया है, तकरीबन 1900 अरब रुपए आगे कर दिया गया है। 5,829 अरब रुपए का टैक्स आमदन का हदफ रखा गया है और नॉन टैक्स आमदन का हदफ 1,420 रुपए होगा, जो कि काफी अग्रेसिव किस्म के टारगेट्स हैं। 900 अरब रुपए अलबत्ता PSDP जो वफाक का सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसके लिए रख दिए गए हैं। और एक खुशखबरी भी है सरकारी मुलाजमीन के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए, कि उनके लिए 10 से 15% तक तनख्वाह बढ़ाए जाने का इम्कान है। हतमी फैसला वजीर आजम अभी वफाकी काबीना के इजलास में करेंगे जो तकरीबन 11:30 बजे शुरू होगा। उसके साथ साथ पेंशन में भी इजाफे के हवाले से समरी वफाकी काबीना में पेश की जा रही है। उसका जो फाइनल वॉल्यूम है कि 15 या 10% जितनी भी होगी उसको काबीना में तय किया जाएगा। अलबत्ता इस बजट के दौरान खास तौर पर जो पहलू रखे गए हैं वो है आबी वसाइल, बिजली के जो मामलात हैं, जो के मामलात हैं और खसूसी तौर पर सीपेक के ऊपर भी काफी तवज्जो रखी गई है, उसको तेज किया जाएगा उसके दूसरे मरहले को। और तालीम के शोबे के लिए भी 22 अरब रुपए रखे गए हैं, वजारत खारजा के लिए भी 22 अरब और 78 करोड़ रुपए रखे गए हैं। काबीना डिवीजन के लिए भी 33 अरब रुपए हैं और सूबों के तरक्याती जो मंसूबे हैं उसका काफी बड़ा वॉल्यूम रखा गया है। 1200 अरब रुपए से जायद सूबों के तरक्याती मंसूबों के लिए हैं। अब तो है कि इन तरक्याती मंसूबों के नतीजे में जो तरक्याती अमल है, जो रोजगार की फराहमी का अमल है और जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियां वाबस्ता हैं इन तरक्याती कामों से,
उनका पहिया भी तेज होगा और सूरत हाल एक काफी बेहतर हो सकेगी। इंशाल्लाह, अल्लाह करे जैसे लाइक आप कह रहे वैसे ही हो। और जो आपने टीके की बात की थी कि अवाम को कम टीके लगेंगे, स्पेशली जो सैलरी क्लास है उस पे ज्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया जी, लाइक और हमारे नुमाइंदे और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अब ये नहीं कि इसका मतलब ये है कि मुझे एक टीका लग चुका है कोविड-19 की वैक्सीन का, साइनोवैक का, तो वो एक ही लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। इनको 2 ही लगे हैं, तो अब इनको जिनको लग गए हैं 2 वो तो ठीक है, लेकिन बाकियों को 1 लगेंगे। ऐसा नहीं है, ये बजट के टीके की बात होगी। अच्छा जी, और आज जो बजट पेश होने जा रहा है उस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि वफाकी हुकूमत आज माली साल 2021 और 22 का बजट पेश करने जा रही है। हुकूमत की काविशों से मुल्की मईशत पर छाए स्याह बादल जो है वो छट चुके हैं। बिल्कुल, और मईशत में बेहतरी के सम्राट आवाम तक पहुंचाने के अमल का आगाज होने को है। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक आवाम के लिए ज़्यादा सहूलियात पैदा करनी है। ये बजट काश्तकारों, मजदूरों और सनती मुलाजमीन के लिए खुशखबरियां लाएगा। चलें जी, एक बार फिर से बात कर लेते हैं टैक्स रिफॉर्म्स की। तो जनाब, हिरासा नहीं करेंगे, लेकिन जो टैक्स नहीं देगा अब सीधा का सीधा जेल जाएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर ख़जाना शौकत अली ने बिल्कुल ही खबरदार कर दिया है। और वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं कि FBR के हिरासानी ख़त्म कर दी है। FBR नोटिस नहीं देगी, खुद जायज़ा लेकर टैक्स दें, थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं, कोई पकड़ा जाए तो फिर उसको टांग दें। वज़ीर ख़जाना मज़ीद कहते हैं कि IMF ने टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन हुकूमत गरीब आदमी और तनख्वाहदार तबके पर बोझ नहीं डालेगी, क्योंकि तनख्वाहदार तबके को यही है परेशानी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर टैक्स पे बढ़ जाता है, ऑलरेडी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है, तो मज़ीद मुश्किलात हों। क्या कहा था मज़ीद, आपको सुनवाते हैं। FBR की हरासमेंट खत्म कर देनी, सेल्फ असेसमेंट होगी, कोई FBR का आदमी किसी को नोटिस नहीं देगा, रिस्क बेस्ड ऑडिट करवाएं थर्ड पार्टी से 3-4%, और जो पकड़ा जाए उसको टांग दें। ना हमने जब जाके लोगों को पकड़ा, नॉन फाइलर है, फिर हम लोगों को जेल में भेजें। जी जनाब, तो इसी पर बात करने के लिए साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम शब्बर जैदी साहब। सर, ये ज़रा फरमाइएगा कि जाहिर है कि आप चेयरमैन FBR भी रह चुके हैं, ये जो टैक्स नेट बढ़ाने की बातें होती हैं, आपको क्या लगता है कि तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ बढ़ाए बगैर जो एग्रेसिव टैक्स जो हैं सजेस्ट किए जा रहे हैं, वो कहाँ से वसूल होंगे? देखिए, 2 बातें बड़ी हमें समझ ली जानी चाहिए बिल्कुल क्लियरली। पहली बात तो ये कि जो मईशत की हालत पिछले साल थी 2019-20 में, अब 20-21 में उससे बहुत कंपैरेटिवली बेहतर है। पहली बात तो ये है, इसलिए कोई बाकी इस वक्त परेशानी का कोई माहौल नहीं है। दूसरी बात ये, जो हम लोग जब बजट आता है तो ये एक माहौल क्रिएट करते हैं कि सैलरी के टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। मैं इस पर बिल्कुल एक मुख्तलिफ जवाब देता हूँ कि सैलरी टैक्स बढ़ा के गवर्नमेंट को कुछ मिलता नहीं है, ये बिला वजह कोयले की दलाली है, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है टैक्स बढ़ाने की। ना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सैलरी के टैक्सेशन में कोई इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि हो सकता है थोड़ी बहुत छूट मिल जाए, इसमें कोई चांस नहीं है कि सैलरी बढ़े, क्योंकि ये इसमें कुछ है नहीं। ये टोटल 150-160 बिलियन रुपए का टैक्सेशन है। 4000 बिलियन में 150 की बिलियन की टैक्सेशन की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट नहीं बनाएं, और इसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। इसमें पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो वसूली कैसे करेंगे? सवाल मेरा यही था कि आप वसूल कैसे करेंगे? मेरी बात सुनो ना, जब 4000 में 155 का उसको क्यों ले रहे हो? बाकी को देखो ना यार। देखिए ना, 4000 में इसकी अमाउंट है 150-160 टोटल, तो बाकी 3600 की बात करें, 3800 की बात करें, आप 155 के पीछे पड़े हुए हैं कि उसमें से पूरा करेंगे। अगर उसे पूरा करेंगे, कितना % इंक्रीज कर लेंगे? 15% इंक्रीज कर लेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आपको अर्थमेटिक वाला कहेगा कि आप उसके अंदर जाएं? तो ये प्लीज ये सैलरी टैक्सेशन को भूल जाए, इसमें कुछ नहीं होने वाला, पॉजिटिव होगा इंशाल्लाह ताला, और ये कोई पाकिस्तान का बड़ा मसला नहीं है इस वक्त। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ज़ैदी साहब ऐसा ही हो। ज़ैदी साहब, अभी ये कहिएगा कि जैसे ऐसा ही होगा, नहीं मैं ऐसा होगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आप शाम को इंशाल्लाह। अच्छा ज़ैदी साहब, ये कहिएगा, वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि जी FBR की जो हिरासानी है उसको ख़त्म कर दी है, अब जो नादहिंदा है उसको नोटिस जारी नहीं होंगे। तो इससे अब ये भी सवाल पे है कि क्या इससे जो FBR का रोल है उसको भी लिमिट कर दिया गया है? देखिए, बात ये कि जब 2006 में 7 में शौकत अली साहब वज़ीर ख़जाना थे, तो मैं उस वक्त
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था। जी जी अच्छा तो मैंने और वजीर खजाना साहब ने मिलकर एक स्कीम डिजाइन की थी। इसके तहत हमने ये कहा था कि हम जो ऑडिट कराएंगे वो अफसर से नहीं कराएंगे, अच्छा बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरे लोगों को आउटसोर्स करेंगे और वो ऑडिट करेंगे, और उसके बेस पे फिर जो कि प्रोसीडिंग होगी। शौकत तरीन साहब उसी सिस्टम को दोबारा लाना चाहते हैं, और वो टेक्निकली एक अच्छा सिस्टम है और उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी कम्युनिटी और हम उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो चीज़ जो बात वो कर रहे थे वो उस वक्त भी ठीक थी, आज भी ठीक है। अब सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, क्योंकि हम इस बात पे मुत्तफिक हो चुके हैं कि जो अफसरान ऑडिट कर रहे हैं ना उनमें कैपेबिलिटी है और ना उनके अंदर वो इंटेग्रिटी का लेवल है अच्छा कि जो उस लेवल पे पहुंच सके कि हम एक रीजनेबल ऑडिट कर सकें। जो अगला सवाल जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि जो आदमी उसमें पकड़ा जाएगा और वो फिर डायरेक्टली जेल जाएगा, वो ठीक है, मगर जो हमें मिसाल पैदा करनी है जो हमने आज तक पैदा नहीं की कि पाकिस्तान में कभी भी कोई आदमी टैक्स डिफॉल्ट में सजा याफ्ता नहीं हुआ है। ओके पाकिस्तान में हमेशा मुख्तलिफ फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर लोगों को सजाएं हुई हैं, मगर पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आज तक कोई इंसान टैक्स के फ्रॉड के ऊपर बिहाइंड द बार नहीं गया है। अच्छा आप एक दो मिसालें टैक्स फ्रॉड की पैदा करें और उनको टैक्स बिहाइंड द बार करें या उनको कोई रीजनेबल सजा दें, तो फिर आपको समझ आएगी। अच्छा इसी पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि वहाँ पर अगर बैरून मुल्क बात करें तो वहाँ पर जो टैक्सेशन एजेंसीज हैं उनसे बड़ा खौफ आता है लोगों को, IRS से जान जाती है सिटीजन की, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो क्या FBR को मजीद खुद मुख्तार करने की ज़रूरत है या नहीं, किसी हद तक ज़ेर असर रहेगा वो वजारत खजाना की? नहीं सर, देखिए इस पे मैंने ये किताब लिखी है जो इंशाअल्लाह मैंने आर्टिकल लिखे, अच्छा उससे फिर उसको किताब की शक्ल में दिया है। हमने पाकिस्तान के निज़ाम को इस तरह बनाया है कि हमने टैक्स चोरी को लीगलाइज कर दिया है। जी जी हमारे यहाँ टैक्स चोरी को हमने इस तरह सेटल कर दिया है कि आपको इनकम के बेस पे टैक्स देना ही नहीं है। तो आपने जो जुर्म के तहत जो बंदा पकड़ा जाना था उसको तकरीबन एब्जॉल्व कर दिया है कि वो टैक्स की किसी मैटर पर कभी कोई सज़ा के लिए उसको सज़ा हो ही नहीं सकती। तो उसमें 3-4 आपको स्टेप पे चलना पड़ेगा। पहले आप उस सिस्टम को सही करेंगे और फिर उसमें उस सिस्टम को वापस लाने के बाद वो चीज़ें करेंगे। मैंने आज भी एक आर्टिकल लिखा है बिजनेस रिकॉर्डर में जिसका नाम है कि वी सीम टू हैव नो नॉलेज व्हाट इज अवर टैक्स सिस्टम। इसका मतलब है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे टैक्स सिस्टम में खराबी क्या है। पहले आप ये डिसाइड करें कि हमारे टैक्स सिस्टम में खराबी क्या है, उसके बाद आप फैसला करें। मगर जो चीज़ काबिल सताइश है वो ये है कि कम से कम हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में खराबी की बुनियादी वजूहात क्या है। ठीक है जी, सही है, अच्छी बात है कि अब ये समझ आ गई कि एग्जैक्टली कहाँ पर क्या चीज़ है जो कि सिस्टम को बॉदर करी। बहुत शुक्रिया जी। शब्बर जैदी साहब तो मौजूद थे एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव। उन्होंने कहा नहीं भी सैलरी जो तबका है जी। उनके लिए आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है इस आने वाले ऐसे ही। और बिल्कुल एक और इशू है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, वो है जनाब वैक्सीनेशन के हवाले से। एक तो वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है, ठीक है, 2 डोज लगवाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जनाब नादरा के जो सिस्टम है वो आपको शनाख्त नहीं कर पा रहा, कह रहे हैं कौन हो भाई तुसी ठीक है, आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। और वैक्सीनेशन जनाब अगर आपने नहीं करवाई है और अगर सिस्टम में आप रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। बहुत से लोग हैं, ये बड़ा एक जो समंदर पार मुकीम जो पाकिस्तानी हैं जो कोरोना के बायस यहाँ पर आए हुए थे, अब वो बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उनका ये बड़ा मसला है जो कि अक्सर हमें इस हवाले से बाखबर सवेरा को बताते भी हैं किसी न किसी जरिए से कि जनाब हमें मुल्क से बाहर जाना है तो हमारी एक जो वैक्सीनेशन जो है तरजीही बुनियादों पर हो, और ये जो सर्टिफिकेशन का मसला है उसको हल किया जाए। रिमेंबर बहुत सारे लोगों ने जब 1166 में अपना ID कार्ड भी नंबर भेजा था तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आया, और फिर ये कह रहे थे कि जी आपका तो जो नंबर है ID कार्ड नंबर है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। और अब जब वो मसला हल हो गया, वैक्सीनेशन होगी, अब जब चाह रहे हैं कि जी हम सर्टिफिकेट मिल जाए, फिर अपना ID कार्ड नंबर और अपना वैक्सीनेशन के जो कार्ड नंबर पे जो आप नंबर का इंदराज करते हैं तो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो लोग परेशान हैं कि भाई एग्जैक्टली करें तो क्या करें, क्योंकि नादरा का सिस्टम जो है समहाउ उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक्नॉलेज नहीं कर रहा। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे अनवर खान इस वक्त हमारे साथ हैं। अनवर ये बताइएगा, लोगों को बड़ी मुश्किलात है इस हवाले से अभी खैर कि हम वैक्सीन भी करवा लिए, नंबर का इंदराज करा रहे, लेकिन हमें फैसिलिटेट ही नहीं किया जा रहा, नादरा हमारे नंबर को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा।
जी देखिए, इस वक्त ये इशू जो है वो कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के एक बड़े सेंटर खालिक दीना हाल के अंदर। थोड़ी सूरत हाल में आपको ये बता दूँ, ये मरहला होता है रजिस्ट्रेशन का। इस वक्त आप देख रहे हैं शहरी दाखिलों में अपना टोकन नंबर लेने के बाद, और टोकन नंबर लेने के बाद आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर ये तमाम प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जो कि इस वक्त इन तमाम लोगों की जो कि शहरी यहाँ पर आए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के मरहले को मुकम्मल कर रहे हैं। इनसे तमाम तर मालूमात ली जा रही हैं, और तमाम तर मालूमात लेने के बाद इसके बाद ये तमाम के तमाम अफराद अपनी इब्तदाई मालूमात देने के बाद सामने की जानिब जाते हैं कि जहाँ पे इनकी वो जो ये सिस्टम आप देख रही हैं सामने, वो सिस्टम मौजूद है खालिक दीना हाल के अंदर, जो कि MS सर्विस अस्पताल डॉक्टर फरद अब्बास की निगरानी के अंदर काम कर रहा है। इस वक्त ये सब देख रही हैं, SOP का यहाँ खास ख्याल रखा जा रहा है। तो ये वो तमाम की तमाम सूरत हाल है कि इसके बाद जब मरीज़ यहाँ पे आता है, इस सिस्टम के ऊपर आता है, और इस सिस्टम पे आने के बाद जो है आप इस तरह यहाँ पे तमाम चीज़ों का इंदराज होता है। तो इस सिस्टम के ऊपर जो लोग मौजूद हैं, मैं कैमरामैन दिशान मरगूब आपको दिखाएंगे कि किस तरह सिस्टम के ऊपर इसका इंदराज होता है, और हम इस तमाम तरह सूरत हाल को देखेंगे। ये सूरत हाल आप देख रहे हैं कि इस वक्त इस सिस्टम के ऊपर इंदराज हो रहा है। तो ये सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर ये है कि यहाँ पर तमाम के तमाम सिस्टम इस वक्त फाल हैं, और फाल सिस्टम के नतीजे के अंदर सूरत हाल ये एक चीज़ ज़रा इनसे पूछिएगा, एक चीज़ ज़रा पूछिएगा, कहाँ ये जा रहा है के अंदर लोगों के सिस्टम मैच नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो रही सर्टिफिकेट के उसूल में। ये इससे पहले इस तरह होता था कि बहुत सारे लोगों में कोड नहीं आते थे, इस वजह से मसले हो गए थे थोड़े से बस। अच्छा, अब क्या किस तरह एवोल्यूएट कर रहे हैं? अब ये डायरेक्ट हम लोग नादरा से लिंक किया हुआ है, ये NIC देखेंगे, नंबर लिखेंगे, कोड लिखा हुआ है इसका, यहाँ करेंगे डायरेक्ट नादरा में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ये। MS सर्विस अस्पताल भी यहाँ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि असल सूरत हाल क्या बनती है, कि किस तरह जो है वो लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो रही है सर्टिफिकेट के उसूल के लिए। बहुत अच्छा इक़दाम हो, 2 लाख से ज़्यादा अफराद को यहाँ पर वैक्सीनेट कर चुके हैं, और हम MS सर्विस अस्पताल डॉक्टर फरद अब्बास भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा इंतजाम, तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा अफराद वैक्सीनेट हो चुके हैं, SOP का ख्याल है। असल इशू जो आ रहा है, जो लोग जाते हैं सर्टिफिकेट के उसूल के लिए, इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है टेक्निकल? सबसे पहले तो मैं आपका एयरवाइज न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये लोग एक प्रोग्राम दिखा रहे हैं डायरेक्ट, जो कि खालिक दीना हाल अंडर सुपरविजन ऑफ सर्विस हॉस्पिटल चल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बता दूँ, इस वक्त तक 1,60,000 से ज़्यादा लोगों को हम इसी सेंटर से वैक्सीनेट कर चुके हैं। हमारे पास इस वक्त 5 सेंटर हैं जो कि जिनको मैं सर्विस हॉस्पिटल सुपरवाइज़ कर रहा है, मेरी टीम सुपरवाइज़ कर रही है, मैं कर रहा हूँ। इसमें खालिक दीना हाल है, असम्बली बिल्डिंग है, आर्ट्स काउंसिल है, हाई कोर्ट है, और PMA हाउस को हमारे इसमें रेगुलेट कर रहा है। इशू ये आ रहा है कि सर्टिफिकेट लोगों को सर्टिफिकेट मिलने में मुश्किल काम हो रही है, डेटा अपडेट नहीं हो रहा, क्या इशू आ रहा है? अच्छा, सबसे पहले देखो ना, जब से ये चीज़ें नई शुरू हुई थी, और लोगों को हमारे लोगों को भी इतनी ज़्यादा उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। नेट का प्रॉब्लम हो जाता है समटाइम नेट पूरा दिन नहीं होता है। दूसरा ये होता है कि नादरा के लिंक डाउन भी बाज़ का वो काम नहीं कर रहा होता है, इस वजह से थोड़ा सा डिले होता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास नादरा में उनकी एंट्री नहीं हो पा रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने नादरा के साथ, जिस तरह आपने हमारे डाटा ऑपरेटर से पूछा है कि नादरा के साथ हमने डायरेक्ट लिंक कर लिया, और अभी ये इशू थोड़े से कम हो गए, लेकिन पुराने इशू ऑल ओवर पाकिस्तान ये चल रहे हैं। ठीक है जी, जनाब अनवर खान हमारे साथ मौजूद थे, और एक बड़ा मसला है, हम बार बार कह चुके हैं कि ये मसला है समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए जो मुल्क से बाहर जाकर मुल्क की मईशत की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, और वो मुल्क से बाहर अगर नहीं जा पाएंगे इस सर्टिफिकेट की वजह से, तो उनके लिए भी बड़ा रोजगार कमाने में मसला होगा। सिर्फ अब ये नहीं कि आपको मुल्क से बाहर ट्रैवल करना है, इवन विद इन द कंट्री आपको ट्रैवल करना है, तो ये जरूरी है सर्टिफिकेट होना। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। अपने घर की तामीर हर शख्स का ख्वाब होता है, हर शख्स की ये दिली ख्वाहिश होती है कि वो किराए के घरों से निकल के अपना घर, चाहे छोटा हो लेकिन छत अपनी होनी चाहिए। तो इसके लिए हुकूमत ने सस्ते घरों की तामीर के लिए अहम इक़दाम उठाए। नए पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए कर्ज़ों की हद में 100% भी इजाफा किया गया, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 30,000 माहाना कमाने वाला शख्स भी सस्ते घर की तामीर के लिए कर्जा ले सकता है, और उसके अंदर उसको 80% जो है वो फाइनेंस किया जाता है हुकूमत की जानिब से, बैंकों की जानिब से। और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इक़्तिसादी सर्वे यानी कि इकनॉमिक सर्वे पेश करते हुए बताया कि गरीब का ख्याल रखना है, गरीब आदमी के लिए इस बार बजट में तवज्जो दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने गरीब की ज़िंदगी आसान करनी है। बिल्कुल जी, और उनका ख्वाब पूरा भी करना है, और इस बजट में गरीब हमारे लिए नंबर 1 तरजीह है। क्या कहना था वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का, आप भी सुनिए।
गरीब के ऊपर और बोझ नहीं डालेंगे, सैलरीड क्लास पे और बोझ नहीं डालेंगे। मैं गरीब आदमी पे इस वक्त टैरिफ इंक्रीज नहीं कर सकता हूं, ना ही मैं जो बंदा एक इनकम टैक्स अभी दे रहा है उसके ऊपर और इनकम टैक्स लगा सकता हूं। 113 अरब रुपए के हमारे इनकम टैक्सेस हैं। जनाब, हुकूमत ये कि ऐसा हो जाए, लेकिन जाहिर है कि सिस्टम में कई इश्यूज भी कभी कभार आ जाते हैं। इश्यूज हैं या नहीं हैं, और किस तरीके से आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो इस पर जनाब चेयरमैन आबाद फयाज इलियास साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। जी वालेकुम सलाम। फयाज साहब, फरमाइएगा कि जैसे वज़ीर ख़जाना फरमा रहे हैं कि कम तनख्वाह वाले, यानी कि 25 से 30 हज़ार रुपये कमाने वाले भी इसमें बासानी अपना घर बना सकते हैं, ऐसा है? वाक़तन ऐसा हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें अगर मौजूदा गवर्नमेंट की हम पॉलिसीज़ की बात करें तो ये आगे हो रहा है और होने भी जा रहा है, और इन नंबर्स मेजॉरिटी ऑफ उसमें नंबर्स देखेंगे उसमें होने जा रहा है। पाकिस्तान में एट प्रेजेंट अगर हाउसिंग की हम शॉर्टफॉल देखें तो 12 मिलियन हाउसेज से हम शॉर्टफॉल हैं, और ख़ास तौर पे इसमें वो हमारा तबका के जो एक्सट्रीमली जो लोअर क्लास हमारे जो तबका है, जो गरीब तबका है, जिसके घर की जिसको ज़रूरत है, आज उसकी घर की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। पास्ट में हम देखते हैं बहुत सारे कमिटमेंट्स या पॉलिटिकली ये रोटी कपड़ा और मकान का हम सुनते आ रहे हैं, बट आज जो चीज़ें मकान का जो कमिटमेंट है, ये एक 50 लाख घर का जो पीटीआई की तरफ से जो एक अनाउंसमेंट किया गया था आबाद हाउस में बिफोर कमिंग जो गवर्नमेंट में आने से पहले, आज वो पाए तकमील तक पहुंच रहा है। और पंजाब के बहुत सारे शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ जिसका जो है आगाज़ भी हो चुका है। केपी में जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, बलूचिस्तान में इवन स्टार्ट हो चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट भी कुछ इसमें सपोर्ट देगी तो कराची जैसे शहर जहाँ बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट है, मतलब कब तक ये होगा सिंध के लिए? वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी जैसे प्रपोजल जो है वो थ्रू नेपडा जो चेयरमैन अनवर अली हैदर जो है उसको हेड करते हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड है वो, तो इस सिलसिले में भी जो इन प्रोसेस हैं कराची में, कुछ फेडरल एंड जो प्रोविंशियल के जो कुछ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मैं हम समझते हैं उसकी वजह से इसमें डिलेज हो रहे हैं इसमें। ये तो उसके बड़े तरक्याती मंसूबे हमने देखा है कि समहाउ वो तातुल का शिकार है। लेकिन ये कहिएगा कि आम आदमी जो कि 30 हज़ार कमाने वाला है, जिसने जो घर में भी किराया देता है तो 10-8 हज़ार तो उसके घर का किराया चला जाता है, वो किस तरीके से स्विच कर सकता है? उसके लिए क्या कुछ फ़ायदा है और कितना आसान होगा उसके लिए? 30 लाख का घर मिनिमम जो उसका बेंचमार्क है, 30 लाख के घर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले 1 लाख घर जो है उसके लिए 10% जो है वो सब्सिडाइज कर रहे हैं, जिसमें से 3 लाख गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करेगी। जो बायर है उन्होंने सिर्फ 3 लाख पे करना है। 80% ऑफ द अमाउंट जो कि तमाम जितने कमर्शियल बैंक है उन्होंने अपना 5% पोर्टफोलियो का वो रिजर्व किया है, अमाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, जिस वो जो कि तकरीबन 378 अरब रुपए का एक अमाउंट है जो इस इंडस्ट्री में इंजेक्ट होना है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये टोटल अमाउंट जो है उन्होंने 20 साल में जो है पे बैक करना है उन गवर्नमेंट्स को, तो इसकी अमाउंट बनती है अप्रॉक्सीमेटली 12,000 से 15,000 का एक इंस्टॉलमेंट बनती है इसकी। तो एक आदमी के जो शॉप होल्डर है या आपका टैक्सी चलाने वाला है, अगर वो 30,000 25,000 वो अर्न करता है या इसकी फैमिली में और लोग हैं, उससे नीचे का जो तबका है, यानी कि जो 18,000 रुपये कमाते हैं, जो कि एक बेसिक सैलरी है, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो सकेगा। और अगर फर्ज करें कि 30,000 सैलरी वाला भी है, 15,000 रुपये अगर 12 से 15,000 लेट से कि उसे किस्त देनी है, और उसके अंदर फिर उसके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंटली वो जहाँ रह रहा है वो भी जाहिर है कि किराए के घर में रह रहा होगा, उसका किराया, फिर घर के अखराजात, तो इसको मजीद कुछ इसके अंदर सब्सिडी देने का इरादा रखती है? ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में सब्सिडी तो दे रही है, लेकिन अगर एक फैमिली में एक से ज़्यादा कमाने वाले हैं, अगर 20,000 की एक सैलरी है, 20,000 और कमाने वाले, तो ये कलेक्टिवली जॉइंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जिसमें अगर आप 12,000 सेविंग करना एक विद इन द फैमिली, 2 लोग अगर अर्न कर रहे हैं, 2 लोग अर्न कर रहे हैं, या एक 30,000 की आप अर्न कर रहे हो, तो उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट इनिशियली तो ये अमाउंट जो है 3 लाख देना है उस बायर ने, और 3 लाख गवर्नमेंट की सब्सिडी, 80% जो 24 लाख रुपए का अमाउंट बनता है वो बैंक ने जो है फाइनेंस करना है, लेकिन और वो बात पे बैक। फयाज कथा कलामी की माजरत, लेकिन वो शख्स जो कि 35,000 भी कमा रहे हैं, बैंक भी जो उनको लोन दे रहे हैं वो 15-18 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं दे रहे, तो यहाँ पे अब लोग फंस जाते हैं कि अब क्या करें। देखिए, इसमें नया पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, आप इसको रूटीन कन्वेंशनल जो बैंकिंग साइड है, जो लोनिंग फैसिलिटीज है, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। इस सिलसिले में नया पाकिस्तान की पॉलिसी में एक स्पेशल जो है, इसमें अगर एक
बैंक जो लोन लेना चाह रहा है उसके पास बैंक अकाउंट भी अगर नहीं है या उसके पास एनटीएन वो रजिस्टर्ड भी नहीं है इनकम टैक्स में, बावजूद इसके उसकी जो इसकी अर्निंग है उसको मॉनिटर किया जाएगा। उस मॉनिटरिंग के तहत वो देखा जाएगा कि क्या उनकी अर्निंग है। नहीं, सिर्फ लेकिन ये ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है? मिसाल के तौर पर जो लोग हैं जिनकी कमाई 30,000 के आसपास है, तो उनको एक तो आपने ये देखना है कि अभी वो इतना कमा रहे हैं, और दूसरा बैंक ये भी देखता होगा कि जनाब अगले 5 साल तक या अगले 20 साल तक क्या इतनी सस्टेनेबल इनकम उसकी रहेगी कि वो पे बैक कर सके। तो आपको लगता है कि बज़ाहिर तो ये बातें कहने में बड़ी आसान है, लेकिन इतनी बैंक जो है वो रिस्क लेने को तैयार है कि जनाब एक शख्स जिसकी जो कमाई जो है वो डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है, तो उसको सस्टेनेबल भी होगी या नहीं होगी, तो उसको वो दे रहे हैं पैसे। देखिए एक इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहूँगा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंकिंग सेक्टर है वो हाउसिंग को लोन दे रहा है। प्रीवियसली ऐसा था कि अगर हम एज ए बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और मॉर्गेज फाइनेंसिंग के लिए, तो अदर देन एक हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अलावा हमारे पास कोई दूसरा इदारा नहीं था। आज जब तमाम बैंकिंग सेक्टर जो है एक्टिवली दे आर चेजिंग अस, हमारे पीछे एक आप लोन ले लें, प्रोजेक्ट फाइनेंस चाहिए, मॉर्गेज फाइनेंस चाहिए, तो इट्स अ वेरी क्लियर नाउ कि बैंक्स जो है वो लोन देना चाह रहे हैं विद वेरी इजी कंडीशंस के तहत, किसी किस्म के कोई हर्डल्स नहीं है। इनको सिर्फ इस चीज़ के लिए देखें, एक रिस्क फैक्टर की आप जो बात कर रहे हैं, इस वक्त रिस्क फैक्टर देखें तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो ऑटो इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट्स की गई बैंकिंग, तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो वहाँ है। आज एक मकान आप देखते हैं कि 30 लाख का मकान बनता है, फ्यूचर में उसकी वैल्यूएशन हमेशा बढ़ती जा रही है। प्रेजेंटली जिस तरह से कीमतें, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ रही है, तो घर की तामीर में या एक घर जब बनता है, कोई आप परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो हमेशा अप्रिसिएशन ही उसमें मिलता है। तो बैंक जो है उसमें भी सिक्योर है। कल को अगर किसी ने कोई डिफॉल्ट हो गया, तो डिफॉल्ट की सूरत में अगर वो मकान उसने वापस लेना भी है तो उसकी प्राइस आज आपने 24 लाख रुपीस उसमें अगर इन्वेस्ट किया है बैंक ने, तो कल आपको तो उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। और कोई ऐसा कौन है जो अपने मकान को लूज चाहेगा कि इसका मकान उससे छीन जाए? तो ये 12,000 का एक सेविंग बेंचमार्क जिसे इंस्टॉलमेंट का है, उसे वेरी मिनिमम साइड पे है, और उसमें और भी एडजस्टमेंट और पॉसिबिलिटीज हैं। ऑल टुगेदर इस प्रोजेक्ट से हमारी जो कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है उसको कितना फायदा हुआ है, वो कितनी फ्लरिश हुई है? देखें, हम तो पिछली पूरी पास्ट हिस्ट्री हम देखते हैं, लास्ट अगर 70 ईयर्स में से हम कहें कि 30-40 ईयर्स की हम बात कर लें कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या फैसिलिटीज़ हमें मिली हैं, तो माजी में तो हमें कोई ऐसी एग्जांपल हमें नहीं मिलती, इसकी नज़र नहीं आती कि हमें इस इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया गया, जो कि पिछले साल 2020 जो एक पैंडेमिक से हम गुजर रहे थे, और कंस्ट्रक्शन को अप्रैल 2020 में जो है इंडस्ट्री का दर्जा भी करार दिया गया, और स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020 दिए गए, जो कि जिसमें आपका फिक्स टैक्स रिजीम है, और इसके अलावा सेक्शन 111 के तहत एफबीआर में आपको ये छूट दी गई कि वो असासाजात जो अनडिक्लेयर्ड है, वो एसेट्स जो अनडिक्लेयर्ड है, वो एसेट्स अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो जिसमें आपको कोई पूछगछ नहीं की जाएगी। ये एमनेस्टी लास्ट ईयर जो है वो खत्म होनी थी दिसंबर 2020, बट वी आर थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसको एक्सटेंशन की जून 2030 और अकॉर्डिंगली दिसंबर 2021। बट अब ये कि जून 2030 में जैसे शहर हम देखते हैं कि अप्रूवल्स के प्रोसीजर है, पॉलिसी मेकिंग्स में कुछ डिलेज आए हैं, तो उस लिहाज से वो तरह से काम हो नहीं सका। उस रजिस्ट्रेशन हुई है, बहुत बड़ा बेनिफिट जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, बट इसमें हमारी ये हमने रिक्वेस्ट की है कि इसको मजीद एक्सटेंशन इसमें ताकि लॉन्गर टर्म देख सकें इसके फायदे। बहुत शुक्रिया जी, फयाज इलियास हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आपको हम खबर देते चलें कि बलोचिस्तान में खारान के इलाके हलमर्क में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है जिसको इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए हैं। जनाब लईकुर रहमान हमें तफसीलात देंगे। लईक बताइएगा इस ऑपरेशन के हवाले से। जी, बलूचिस्तान का ये जिला है खारान और उसका इलाका है हलमर्ग, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की इतला पर, खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन के दौरान 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए हैं, और इस फायरिंग के तबादले में FC का एक बहादुर जवान शहीद भी हुआ है, जिसका नाम फिदाउर रहमान बताया जा रहा है, और वो चित्राल के रहायशी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान काफ़ी भारी मिकदार में असलहा, गोलियाँ और दीगर जो सामान है दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे, उनसे कब्जे में ले लिया है। और साथ ही इस आदमी का सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इरादा भी किया गया है कि मादरे वतन के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा, और बलूचिस्तान में जो तवील कुर्बानियों के बाद अमन और इस्तेहकाम आया है उसे हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका लईकुर रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चलें जी, आप ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे।
जी जनाब आली, वेलकम बैक टू आवर शो। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सनती तरक्की का इनकलाब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के दहलीज पर आन पहुंचा है। बिल्कुल जी, और रशकई सनती जोन में शामिल स्टील के यूनिट से दिसंबर से पैदावार भी शुरू होगी, जबकि टर्की के सरमायाकार ग्रुप ने $500 मिलियन की सरमायाकारी की यहाँ पर ख्वाहिश भी जाहिर कर दी है। जी बिल्कुल, और इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से शहजाद महमूद। सीपैक की छतरी तले मुल्क के पहले रशकई सनती जोन के हवाले से बड़ी खुशखबरी। सीपैक में शामिल रशकई सनती जोन में स्टील के यूनिट से पैदावार का आगाज दिसंबर में होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खसूसी बराए सनत अब्दुल करीम खान कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक रशकई सनती जोन में एक्सपोर्ट की हामिल सनतों को तवज्जो दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हतार सनती जोन में तुर्की की एक कंपनी $500 मिलियन की सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर कर चुकी है। हतार सनती जोन में 5 अरब रुपए की सरमायाकारी से ऑक्सीजन प्लांट और 3 मिनरल बेस सनतें लगाई जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जिसने सीपैक के इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्टेट होने का सबूत दिया है। ये वाहिद स्पेशल इकनॉमिक जोन अंडर सीपैक एम्ब्रेला है जो कि लीगल है। मुआविन खसूसी बराए सनत अब्दुल करीम खान के मुताबिक वस्ती एशिया की तिजारत के लिए अहम मनसूबा वाखान सरहद रोड है। इस रोड की मंजूरी के लिए केस वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दिया गया है, जबकि 300 अरब रुपए की लागत से पेशावर डेरा इस्माइल खान नई मोटरवे कायम की जा रही है, जिससे सनती तरक्की को मजीद तक़वियत मिलेगी। वाखान बॉर्डर का रोड भी PSDP में इस्लामाबाद गया है और एक्सपेक्टेड है कि वो अप्रूव हो जाए। अभी जो हमारा नया मोटरवे आ रहा है जो कि चाइनीज़ JCC से अप्रूव होगा 300 अरब रुपए का, वो है पेशावर ODA खान मोटरवे। इससे वो मगरबी रूट वाला मसला हमारा हल हो जाएगा। 50 साल के बाद पेशावर में छोटे सनतकारों के लिए 1200 केनाल एराजी पर मुश्तमिल सनती जोन, करक में 200 एकड़ पर मुश्तमिल साल्ट एंड जिप्सम सिटी, बुनीर में मार्बल सिटी और मानसेरा में ग्रेनाइट व मिनरल सिटी का कयाम अमल में लाया जा रहा है। इसी तरह सूबे की तारीख में पहली मरतबा दरमियाने दर्जे के 11 सनती जोन कायम किए जा रहे हैं। कैमरामैन अरशद खान कैमरा, शहजाद महमूद, एयर1 न्यूज़, पेशावर। तो एक बार फिर से हम बजट के वाले से बात कर लेते हैं। लोगों की से जो तवक्कुआत जुड़ी हुई हैं उस पर बात करेंगे। लोग खैर क्योंकि कह रहे हैं कि भाई कोई हमारे लिए ऐसी चीज़ें करें कि महंगाई कम हो जाए, टैक्स कम हो जाए। ताजिर बिरादरी दूसरी जानिब कह रहे हैं कि भाई वाकई आप लोग महंगाई कम करें, क्योंकि महंगाई जैसे बढ़ती है ना तो फिर लोग जो है वो मार्केटों का रुख ही नहीं करते। बिल्कुल, और हम अगर सब्जी वाले के पास जाएं, किसी के पास भी जाएं, तो उसका जवाब यही होता है पीछे से महंगा है। ताजिरों से बात करें, पीछे से ज़्यादा रेट पे आ रहा है, हम महंगा बेच रहे हैं, और सब यही जवाब देते हैं, तो बेचारे पिसते हैं अवाम। बिल्कुल जी। और इशफाक जो मेरे साथ बैठे हुए हैं जी, स्पेशली जोड़िया बाजार गए जी, और इसी के साथ ही मेरा खिताब खत्म हुआ। बिल्कुल जी, देखते हैं कि आज जो बजट आता है तो फिर क्या होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।